ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद भी भारत निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह। ईटी अवार्ड्स में बोली वित्त मंत्री का बड़ा बयान, कैपिटल गेन टैक्स को लेकर सारी अटकलें निराधार। ईटी अवार्ड्स में लगा बिजनेस जगत के दिग्गजों का महामेला। अमिताभ कांत, संजीव मेहता, उदय कोटक, केवी कामत समेत कई कॉर्पोरेट दिग्गज शामिल। कई हस्तियों को किया गया सम्मानित। टेक कंपनियों के अच्छे नतीजों से अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी। डाउ में 270 अंकों की बढ़त, S&P 500 में करीब 1% की तेजी। कोटक बैंक के अनुमान से अच्छे नतीजे, NII 37% तो मुनाफा 30% बढ़ा। बैंक की एसेट क्वालिटी अनुमान के मुताबिक। मंगलवार को रिफाइनिंग शेयरों पर रहेगी नजर। सिंगापुर GRM में एक ही दिन में 70% की गिरावट। सिंगापुर GRM $0.8 पर पहुंचा। दिग्गज एजुटेक कंपनी बायजूस पर ईडी का एक्शन। बेंगलुरु के 3 ऑफिस में सर्च ऑपरेशन किया। कई दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त। कंपनी के ईडी ने सर्च को रूटीन जांच बताया। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हुए। रविवार को 100वां एपिसोड होगा। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने दी बधाई। यूएन हेडक्वार्टर पर होगा 100वें एपिसोड का लाइव टेलीकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। सबसे पहले बात ईटी अवार्ड्स की, जहां दिग्गजों का महामेला लगा है। ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह बताई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ईटी अवार्ड्स में दिग्गज FMCG कंपनी HUL के MD एंड CEO से हमने बात की, आइए सुनते हैं। Since the last 1.5 years, gradually our central bank is also decoupling itself. Not that it was entirely linked with the US Fed even earlier, but post the pandemic and post the Russia-Ukraine, the sense that all central banks would look for a direction and move towards that direction sequentially is clearly disproved in the conduct of many emerging market central banks, not just India. So for India, I would think the contagion risk is not really a problem, but the risk is there in the sense when markets to which you largely exported are coming under recession, then the demand is going to fall, your exports are going to suffer. So that risk is definitely there. I'm not eliminating that. But the contagion risk, usually linked to the conduct of the central banks, I would think is not there for us to face. Well, for once, I'm going to talk completely in favor of the private sector from their side. If after 2019, bringing down the corporate tax, and giving a time till March 2023 to expand businesses or set up new businesses and everything else. If the world had been normal, I think to be a bit tough and expect saying you've not really come out in flying colors would have been a reasonable argument. But if immediately after 2019, October when this was announced, September end, you had the pandemic and how? And after that, you also have the uncertainties of the war. But despite all this, I still can see many expansions happening, new investments happening. Otherwise, why will there be such a impactful impression about India and its attempts to bring in renewable energy? Look at the keenness with which people are coming to India to set up in many fields.
whether it is your semiconductors or looking at renewable energy or looking at rare earths. And also because the policy per se has now opened up even space sector. I was there in a different context releasing a book. I did speak about India's public sector enterprises policy, which actually has opened up so many areas in which private sectors can come and invest. In fact, there's no area left without the private sector coming into it. So with all this, I can see, otherwise India's space industry, even as it was doing very well, wouldn't have had so many private parties coming in and saying, we would like to use the facility. So it is happening. Let me be very clear. I'm not justifying it. I remember you questioned me several times on it. I'm not suggesting that that word is not being used, that expression is not coming about now, and therefore there's no terrorism. I'm not saying that. There can be some harassment here, harassment there, harassment some places. But today, when you're looking at deep data and AI-driven, faceless-driven systems, the fact that trails are coming out, obviously, and the trails going to shell companies are there in your face, I can't see how the CBDT or CBIC can remain mute spectator. How the boards can remain a mute spectator. When data is active, it is showing. And if brazen misuse is happening in some sections, it's only natural that you should go. And I'm glad, and efficiently if they're going, I'm glad. Because that has to be plugged. So those who are genuinely and rightly paying taxes will lose faith. If there are, there are pictures put out. Shell companies, about 300 of them, operating in about a 50 square meter area with just one table and chair and getting refunds to the extent of about 400 crores. Would you expect the department to sit quiet and watch? Obviously, they'll go. So I don't want this to be a conversation eternally about India's and tax authority. Tax authorities are now sitting up and being ready to answer as well. But if you're going to be quiet for fear that you'll be accused of unleashing a certain kind of terrorism, the inefficiencies will only perpetrate. We don't want that. We need to appreciate people who are paying genuinely the tax, and those who are misusing it will have to be called out. ET अवार्ड्स में दिग्गज FMCG कंपनी HUL के MD NCO से हमने खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। You know, the good bit is that the top line headline growth is still there, which indicates that the consumers are spending more money. And if the consumers are spending more money, that's a very good sign. So you are optimistic on rural recovery? Oh, absolutely. I'm a born optimist, and we are clearly seeing green shoots. If the prices come down a bit more, the recovery will be even more faster. ET अवार्ड्स में G20 शेरपा अमिताभ कांत से बात की, आइए सुनते हैं। Government has already taken several measures in terms of increasing the total outlays on infrastructure. This is really the opportunity to really accelerate the pace of implementation. Yeah. So this year should really be the year of implementation. And that'll have a huge impact, multiplier impact on India's economy. And I think the outlays have been provided, reforms have been done. This is also an opportunity for private sector to really kick in investment in a very big way. I really feel that we are at the cusp of sustained growth over a long period of time. We just need to keep reforming. We just need to make ourselves easy. We need to ensure that government retreats from a lot of areas in which it is and ensure that private sector becomes the wealth creator. Government needs to focus on education, health, nutrition. Government should do consistent policy making. Government should create wealth.
we should just keep accelerating this present. I think what we've done in terms of GST, IBC, RERA, all this will stand us in good stead in the coming years. अब रुक करते हैं दूसरी खबरों का। तो ओएमसी की पेट्रोल डीजल पर अंडर रिकवरी खत्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में कमी के आसार नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कंपनियां अभी अपने पिछले नुकसान की भरपाई कर रही है, इसलिए अभी दाम नहीं घटेंगे। इस पर और विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं कच्चे तेल में उतार चढ़ाव और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय का क्या रुख है? देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं उनका ये मानना है कि ग्लोबल मार्केट में कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका असर क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर देखने को मिल सकते हैं। अनिश्चितता की जो स्थिति है अभी भी बनी हुई है और ओपेक प्लस देशों का जो ये निर्णय आया है कि वो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और ज़्यादा कटौती कर सकते हैं, इसका भी असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार जो है हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। जो वैकल्पिक रणनीति है वो तैयार की जा चुकी है। जहां तक क्रूड ऑयल की कीमतों में जो इस वक्त नरमी बनी हुई है उसका असर घरेलू मार्केट में दिखेगा या नहीं, इसका सवाल है। हमें सोर्स बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल तुरंत कोई कटौती नहीं होने जा रही है। हालांकि सोर्स हमें ये भी बता रहे हैं कि पहले पेट्रोल पर कोई अंडर रिकवरी नहीं थी और अब डीजल पर भी कोई अंडर रिकवरी नहीं है, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो घाटा है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। लेकिन जो पहले का उनका घाटा है वो उसकी रिकवरी अभी कर रहे हैं और इस बात की संभावना कम नज़र आ रही है कि तुरंत पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती हो। जहाँ तक रिटेल आउटलेट्स के मॉडर्नाइजेशन का सवाल है, सोर्स हमें बता रहे हैं कि सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने रिटेल आउटलेट्स पर सिर्फ पेट्रोल डीजल का ही नहीं बल्कि दूसरे क्लीन एनर्जी के भी सोर्स रखेंगे, चाहे वो सीबीजी से संबंधित रिटेल आउटलेट हो सकता है, एलएनजी से संबंधित हो सकता है, सीएनजी से संबंधित हो सकता है, एथनॉल से संबंधित हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो हो सकता है। कंज्यूमर को एक ही रिटेल आउटलेट पर मल्टीपल सोर्स ऑफ एनर्जी का फ़ायदा जो है वो दिया जा सकता है और इसकी रणनीति तैयार की गई है। जहां तक कंज्यूमर को तुरंत राहत मिलने की बात है पेट्रोल डीजल की कीमतों की अगर बात करें तो फिलहाल उसकी संभावना नहीं दिख रही है। जी, धन्यवाद प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। रिफाइनिंग कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सिंगापुर जीआरएम में भारी गिरावट देखने को मिली। ज्यादा डिटेल्स जानते हैं सौमित सरकार से। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे सारे रिफाइनिंग कंपनीज फोकस में रहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसिव ड्रॉप हमें सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में देखने आया है। एक दिन में करीब 70% का फॉल देखने आया है। $2.7 से लेकर $0.8 प्रति बैरल पे ये सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स गिरे हैं। और अगर आप जीआरएम्स के लेवल देखेंगे तो लोवेस्ट लेवल पे है अक्टूबर 11, 2022 से लेके अब तक। अब पूरे ईयर टू डेट अगर आप देखते हैं 2023 में तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स अपने एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे ही रहे हैं। 2023 की जो पीक था $14.3 पर बैरल जनवरी 25 तब से लेके अब तक ये अब $1 प्रति बैरल के मार्क के नीचे गिर चुका है। अब हमने काफ़ी सारे एनालिस्ट से बात किया और उससे हमें ये पता चल रहा है कि जो वीक डिमांड या रिसेशनरी ट्रेंड्स के जो फेयर है ग्लोबल मार्केट पे और हाई इन्वेंट्री लेवल्स जो है इसके वजह से ये ड्रॉप देखने को मिला है। अब एमआरपीएल के लिए अगर खासकर हम बात करें तो $1 प्रति बैरल ड्रॉप अगर हमें जीआरएम्स पे देखने मिलता है तो जो रेवेन्यू लॉस कंपनी को होता है वो करीब 700 करोड़ का है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल के अर्निंग्स पर अगर हम देखें तो $1 प्रति बैरल से अगर जीआरएम गिर जाता है तो करीब 14 to 16% का एक ईपीएस इम्पैक्ट देखने मिलता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो $1 प्रति बैरल जीआरएम गिरने से करीब 4 to 5% के कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पे उनका एक इम्पैक्ट देखने मिलता है। बट आज के टाइम पे थोड़ा इम्पैक्ट कम हो सकता है इन कंपनीज़ के लिए क्योंकि ये कंपनीज़ रशिया से काफ़ी सारा क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं और रशियन क्रूड एक चीपर लेवल पे मिल रहा है तो थोड़ा बहुत कॉस्ट सेविंग कंपनीज को वहाँ पे भी देखने मिल रहा है। बट एक बहुत बड़ा ड्रॉप गिरने के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहेंगे। कोटक बैंक ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। नतीजे कैसे रहे जानते हैं हर्ष से। जी हाँ, तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है कोटक महिंद्रा बैंक का वो एक सॉलिड बढ़ा है 37% ईयर ऑन ईयर। हमारे एक्सपेक्टेशन से मच बेटर 6,100 करोड़ पे वो पर्टिकुलर नंबर जब हम हमारे एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस देखें तो अराउंड 5,900 करोड़ ऑड पे
स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4650 करोड़ के आसपास, वो भी एक अच्छा बीट। तो ऑपरेशनली भी कोटक महिंद्रा बैंक ने अच्छा किया है। जब प्रोविजंस नंबर को देखें 180 करोड़ के आसपास हमारी एक्सपेक्टेशन थी, 148 करोड़ पे आया है प्रोविजंस का नंबर Q4 के लिए। तो सिक्वेंशली भी प्रोविजंस एब्सोल्युटली फ्लैट और काफ़ी लो बेस पे फ्लैट रहा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन, एक अच्छा संकेत है कि कोटक महिंद्रा बैंक डिस्पाइट MSME भी करंटली प्रोविजनिंग या एसेट क्वालिटी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है उनको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3500 करोड़ पे एक स्ट्रॉन्ग बीट आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2900 करोड़ हमने एक्सपेक्ट किया था, 3500 करोड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीट आया है पैट पे। और अक्रॉस द मैट्रिक्स कोटक महिंद्रा बैंक ने अच्छा किया है। NPA रेशियोज में भी इम्प्रूवमेंट आया है। GNPAs 1.8% से भी कम आए हैं ये पर्टिकुलर टाइम पे। NNPAs भी 0.4% से कम आए हैं ये टाइम पे। तो देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड एसेट क्वालिटी और पैट बीट तीनों फ्रंट्स पे एक अच्छा परफॉर्मेंस कोटक बैंक का। कोटक बैंक के नतीजों के बाद हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा ने बैंक CEO उदय कोटक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोटक बैंक नॉमिनल GDP के मुकाबले 1.5 से 2 गुना तेजी से बढ़ सकता है। Mr. Kotak, first of all, I want to understand for the next financial year, what do you think will be the growth drivers for the bank? I think we have to keep the context in two parts. One is what's happening around the world and their indirect impact on India. Therefore, if the world seems to be slowing down reasonably, that can have impact in terms of IT spends or in terms of India's exports, which in turn has an impact on Indian GDP growth. I think there are predictions on India's growth somewhere in the range of 6 to 6.5% broadly. And therefore, even if you took a more conservative number of 6% growth, and depending on what you think is inflation, let's pick a number 5% for inflation. We're then talking about in nominal GDP growth, give or take around 11.5%. I believe we as a bank can grow at 1.5 to 2 times nominal GDP. अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे कल शाम को आ गए हैं। कैसे रहे अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे, बता रही है हमारी सहयोगी मानसी दवे। अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए और कंपनी के मुनाफे में करीब 36% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि डिमांड में बढ़ोतरी से कंपनी की बिक्री में हमने देखा करीब 18% की बढ़त भी दिखी। मार्जिन्स की अगर बात करें 19% से मार्जिन्स कंपनी के जो है वो गिरे और 17% पर जाते हुए दिखे। अगर अल्ट्राटेक सीमेंट के Q4 हाईलाइट्स की बात करें तो कंपनी के वॉल्यूम्स में हमने देखा इनफैक्ट डोमेस्टिक सेल्स जो है उसमें 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 95% रही। कंपनी के वॉल्यूम्स में भी 15% का इजाफा रहा और रियलाइजेशंस के फ्रंट पर 4.5% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिली। हालांकि कंपनी के खर्च यानी कि कॉस्ट में 7% तक की बढ़ोतरी भी देखने को मिली। कंपनी ने सीमेंट कैपेसिटी कमिश्निंग की है 5.6 मिलियन टन पर एनम की और इसी कमिश्निंग से टोटल ग्रे सीमेंट कैपेसिटी जो कंपनी की है वो 126 मिलियन टन पर एनम इंडिया के लिए हो जाती है। तो सीमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन भी देखने को मिली है। हावेवर अगर देखें तो कंपनी की ऑपरेटिंग एबिटा जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और कंपनी के ऑपरेटिंग एबिटा जो है वो 1060 रुपए प्रति मिलियन टन हुए हैं 900 मिलियन टन से। तो ऑपरेटिंग एबिटा में इंप्रूवमेंट दिखा, वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट है, रियलाइजेशंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि प्रॉफिट के फ्रंट पर इस तिमाही अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों में गिरावट हाथ लगी। अप्रैल के ऑटो बिक्री आंकड़े अगले हफ्ते आ जाएंगे। ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रहेंगे, अनुमान के साथ जुड़ गई है सृष्टि। जी हाँ, अगर इस बार ऑटो बिक्री की अनुमान की बात करें तो सभी सेगमेंट्स में हम कहीं ना कहीं महीने दर महीने गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं अप्रैल महीने से जितनी भी ट्रक्स हैं, बसेस हैं, उनकी गाड़ियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि नए नॉर्म्स जो RDE नॉर्म लागू हुए थे जिसके चलते सभी कंपनीज ने अपने गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके चलते मार्च महीने में काफ़ी बाइंग ऑलरेडी कर ली थी कम कीमतों वाली गाड़ियों की ये सारे बायर्स ने। तो अप्रैल महीने में सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती नजर आई हैं, पर इसके बावजूद अगर हम देखें तो साल दर साल वहाँ पे बढ़त ज़रूर देखने को मिलेगी।
मारुति सुजुकी यानी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है, क्योंकि हम महीने दर महीने एक तो हल्की गिरावट तो ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नई बुकिंग्स की जो गाड़ियाँ हैं वो उस नंबर में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आ रही है। बट इसके अलावा अगर हम नज़र डालें सीएनजी की मांग में, तो वहाँ पे जो हाल ही में गवर्नमेंट ने एक प्राइस कैप लगाया है, जिसके चलते सीएनजी की गाड़ियों में डिमांड वापस से लौटती हुई दिखी है, और इसमें मारुति सुजुकी सबसे बड़ा लीडर या फिर बेनिफिशियरी हम इस बार आते हुए देख सकते हैं। कंपनी से उम्मीद है कि 1.6 लाख गाड़ियां इस बार बेचेगी। वहीं एमएनएम और टाटा मोटर्स के नतीजों में भी करीब 4 से 11% की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा टू व्हीलर सेगमेंट में अभी भी रूरल सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा सुधरता हुआ नहीं नजर आया है, तो जिसके चलते हम उम्मीद कर रहे हैं कि महीने दर महीने सभी कंपनीज गिरावट एक दिखाएंगी। पर इसके अलावा बजाज ऑटो एक एक्सेप्शन साबित हो सकता है। 8% की महीने दर महीने बढ़त की उम्मीद है 3.1 लाख यूनिट पे। और आखिरी में अगर हम ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो वहां पे भी हम हल्की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, पर आगे चल के मांग बढ़ सकती है ट्रैक्टर इंडस्ट्री और ट्रैक्टर सेगमेंट की, क्योंकि जिस तरीके से ये साल पूरा इलेक्शन भरा रहेगा तो कई सारे जो बायर्स हैं वो अभी भी सब्सिडीज की उम्मीद लगा रहे हैं, तो नजर रहेगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट। ईडी ने बायजूस के बेंगलुरु ऑफिस में सर्च की है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं समीर दीक्षित। समीर, बताएं क्या अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस के खिलाफ ये एक बड़ा एक्शन यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिया है। 27 और 28 अप्रैल 2 दिन बायजूस से जुड़ी हुई 3 अलग अलग प्रीमाइसेस पे ये छापेमारी की गई है। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तमाम प्रोविजंस के तहत ये कार्रवाई की गई है। फेमा के वायलेशंस का आरोप यहाँ पर बायजूस पे लगा है, और जो बड़ी बात निकल के आई है वो ये है कि साल 2011 से साल 2023 तक बायजूस को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत, विदेशी फंडिंग के तहत 28,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, और उसमें से बायजूस ने तकरीबन 9,754 करोड़ रुपए वापस विदेश ट्रांसफर किए हैं। और इसके अलावा तमाम और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो इरेगुलरिटीज है जो ईडी ने पाई है। तो ये गंभीर आरोप बायजूस पर लगे हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान यानी कि जो सर्च ऑपरेशन और जो सीजर ऑपरेशन ईडी ने करी हैं 3 प्रीमाइसेस में, उसके बाद ईडी ने कई डिजिटल डाटा और साथ ही साथ कई दस्तावेज जब्त किए हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 साल से लगातार बायजूस के जो सीईओ हैं रविंद्रन, उन्हें लगातार समन ईडी की तरफ से जारी किया जा रहा था कि वो सामने आए, ईडी के सामने आकर के अपनी बात रखे और जो आरोप लगे उस पर जवाब दे। लेकिन एक बार भी ये ईडी के मुताबिक एक बार भी रविंद्रन ईडी के पास नहीं आते, अपना पक्ष नहीं रखते हैं, और उस पर भी वो अपने परिवार समेत दुबई चले जाते हैं। तो इस सब के बाद में आखिरकार ईडी ने बायजूस से जुड़ी हुई 3 प्रीमाइसेस, जिसमें यहाँ तक कि रविंद्रन का खुद का घर शामिल है, उस पर ये सर्च ऑपरेशन किया है और ये तमाम दस्तावेज जब्त किए हैं। जाहिर तौर पे आने वाले वक्त में बायजूस की जो मुश्किलें हैं वो और गहराती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इसके ऊपर बायजूस का ये स्टेटमेंट है कि ये एक रेगुलर कार्रवाई थी, एक रूटीन एक्सरसाइज थी ईडी की जांच एजेंसी की, और बायजूस अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहा है जांच में, और जितने भी दस्तावेज या जो भी उनसे मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई है, समझ में आता है कि बायजूस के जो फाइनेंशियल्स है वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी है, जिसको लेकर के ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और कल यानी रविवार को 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात का सीधा प्रसारण यूएन मुख्यालय में भी होगा। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मन की बात के 100वें एपिसोड पर पीएम मोदी को बधाई दी है। बता दें कि 9 साल पहले 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार उन्होंने इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसमें राजनीति से अलग समाज की बात की जाती है। वहीं आईआईएमसी के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 9 साल के दौरान इसे 1 अरब लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। वहीं लगभग 23 करोड़ लोग नियमित तौर पर इस कार्यक्रम को सुनते और कुछ न कुछ नया जानते हैं। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूद गए हैं। शनिवार को कर्नाटक में उन्होंने अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी
प्रतिक्रिया दी और कहा कि अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार अलग अलग गालियां दी है। इन गालियों के शब्दकोश में टाइम खराब करने की बजाय अगर कांग्रेस ने इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में की होती तो इनकी इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।